Hello everyone, this is Aradhna Thakur and today we will discuss about hydrology. What is hydrology? The hydrology term is derived from the two words. First one is hydros and another one is logos. Hydro and logos. Hydro is a Greek word which means water and logo means study of or science of. So the hydrology is a science of water or hydrology deals with the study of water. If we will talk about in terms of definition, hydrology is the science which deals with occurrence, circulation and distribution of water in the earth atmosphere or beneath the earth surface. So hydrology is broadly categorized into two types or two categories. Two categories are, first one is scientific hydrology. So scientific hydrology में क्या होगा, ये academic and theoretical aspects को cover करती हैं. And second one is engineering hydrology, engineering और applied hydrology. सो अप्लाइड हाइड्रोलॉजी जो कवर करती है वो एप्लीकेशन पार्ट जो है हाइड्रोलॉजी का उसे कवर करती है. एंड अप्लाइड पार्ट क्या क्या हो सकता है, जैसे स्टडी ऑफ वाटर रिसोर्सेज, एस्टिमेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, स्टडी ऑफ नेविगेशन और प्लानिंग ऑफ नेविगेशन, वाटर सप्लाई, द स्टडी ऑफ वेरियस वाटर बैलेंस कंपोनेंट और हाइड्रोलॉजिकल कंपोनेंट और हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेस लाइक प्रेसिपिटेशन, इवेपोरेशन, transpiration, infiltration, runoff and their interaction. We also study about natural disasters like flood, drought and strategies to combat them. So in applied part we study these things. So as we know, the water always in the running form. It moves one place to another place, changes its phases like from liquid to vapor, vapor to liquid. प्रोसेसेस हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होने की, वाटर के मूवमेंट की, इसे हम लोग साइकिल में स्टडी करते हैं जिसे कहा जाता है हाइड्रोलॉजिक साइकिल. सो हाइड्रोलॉजिक साइकिल is the process where we discuss about the transportation of water from ocean to earth or land, ocean to atmosphere, atmospheric to land and land to ocean, and the process will continue. So in hydrology, ocean is considered as the starting point of the hydrologic cycle. So in hydrologic cycle, for example, this is the hilly area, plains, there are some depression, river and this is the ocean. So this is the starting point of the hydrologic cycle. Okay, the ocean, the river, the depression, ये hills और glaciarized area, and here is the sun. Sun is considered as the source of energy in the hydrologic cycle. Okay, so जब ये सन रेज कांटेक्ट में आएगी ओशन वाटर के, तो ओशन वाटर जो है ये इवेपोरेट होगा. तो ये इसकी क्या हुई, फर्स्ट प्रोसेस हुई इवेपोरेशन. सिंस hydrologic cycle starting from the ocean. Evaporation from the ocean will be the first process.
इवेपोरेट हुआ, आफ्टर कंडेंसेशन इट विल फॉर्म क्लाउड्स. ओके, some clouds will stay here and some cloud will move towards the land surface. Okay, then so यहाँ second process हुआ, clouds form हुए through condensation. First process was evaporation, second was condensation. After condensation क्लाउड्स कुछ यहाँ रह गए, कुछ मूव कर गए, प्रेसिपिटेशन हो गया. ठीक है, सो दिस इज द थर्ड प्रोसेस. प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है यहाँ टेम्परेचर डाउन हो तो यहाँ स्नो के फॉर्म में हो सकता है, स्नो और रेन दोनों फॉर्म में हो सकता है. ठीक है, देन अब जो लैंड सरफेस है ये प्लेन तो होगा नहीं, यहाँ कुछ ट्रीज हो सकते हैं, कुछ बिल्डिंग्स हो सकती है. ओके, लाइक कि बिल्डिंग्स हो सकती है. तो जब प्रेसिपिटेशन होगा तो कुछ पार्ट जो है, ये प्रेसिपिटेशन हो रहा है यहाँ से कुछ पार्ट इवेपोरेट हो जाएगा. एटमॉस्फेयर में भी कुछ हीट होगी या टेम्परेचर होगा जिसके कारण कुछ पार्ट जो है एटमॉस्फेयर से ही इवेपोरेट हो जाएगा. ये होगा आपका फोर्थ प्रोसेस विच इज़ नोन एज, ये जो आपका बीच एटमॉस्फेयर में से ही जो इवेपोरेट हो जाएगा वाटर, ये आपका कहलाएगा वर्गा. वर्गा. देन कुछ वाटर जो है आपका ये ट्रीज़ पे आया, यहाँ से इवेपोरेट हो गया. जो कुछ लैंड सरफेस पे ऑब्स्ट्रक्शन है लाइक बिल्डिंग और ट्रीज़, इन पे आया. ये वाटर जो है आइदर यहाँ से इवेपोरेट हो गया या कुछ पार्ट बचा वो ग्राउंड वाटर में कंट्रीब्यूट, ग्राउंड वाटर या ग्राउंड सरफेस पे आ गया. सो जो वाटर इस बिल्डिंग्स और ट्रीज़ के कारण अर्थ पे डायरेक्टली नहीं आ पाया है वो कहलाएगा आपका और इवेपोरेट हो गया, ये कहलाएगा आपका इंटरसेप्शन. ओके, अब ये इसके बाद में जो लैंड, यहाँ पे कुछ वेजिटेशन भी हो सकते हैं. ठीक है, सो अब वाटर जो अर्थ सरफेस पे आया, अर्थ सरफेस पे आने के बाद में कुछ वाटर जो है वो इनफिल्ट्रेट हो गया. ये आपका लाइक ग्राउंड वाटर लेवल है. सो ये 6. इनफिल्ट्रेशन क्या होता है? डाउनवर्ड एंट्री ऑफ वाटर ऑन सॉइल प्रोफाइल. सो ये कुछ वाटर जो है इनफिल्ट्रेट हो गया. देन जो इनफिल्ट्रेट हुआ है वाटर, इसमें से कुछ क्वांटिटी ऑफ वाटर विल मूव लेटरली, जो लेटरल फ्लो कहलाएगा आपका. Some part will goes down and will contribute to the groundwater. So जो ग्राउंड वाटर में कंट्रीब्यूट करेगा उसे बोलेंगे परकोलेशन. देन जो कुछ लॉसेस होंगे जो प्लांट्स के थ्रू इवेपोरेट होगा वो कहलाएगा आपका 9th ट्रांसपीरेशन.
अब सारे लॉसेस जो हैं वो फुलफिल हो गए हैं. देन आफ्टर फुलफिलिंग द ऑल लॉसेस वाटर विल गोज टुवर्ड्स द डाउन साइड और डाउन स्लोप. सो दिस वाटर विल or this is known as runoff. Runoff is the surplus water or the part of precipitation after fulfilling the all losses. So the 10th process, runoff. Okay, then the runoff will goes to the river and will become the stream flow. So river में आने के बाद में जो वाटर दी रन ऑफ जो है वो स्ट्रीम फ्लो कहलाएगा. और ये स्ट्रीम फ्लो जो है वो कंट्रीब्यूट कहाँ करेगा? ओशन में. सो अगेन ये जो वाटर है थ्रू रिवर के थ्रू ये कहाँ चला गया? ओशन में चला गया. एंड ये साइकिल जो है ये रिपीट होगी. And this cycle will continue again and again. So this is known as hydrologic cycle. And in next class we will discuss about global water resources and the distribution of water resources in India. Thank you.